और आगे बढ़ते हुए सीधे आपको लिए चलेंगे, बीसीसीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, टी20 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान हो रहा है। In India in the month of February and March, and also the same team will be playing against the series 5 matches series of T20 matches against New Zealand in the month of January. So I would like to take the opportunity to announce the team on behalf of BCCI, which we have finalized just a few minutes ago. The team will be for both the New Zealand series as well as for the ICC T20 World Cup to be held in India are as follows. Captain Surya Kumar Yadav, Abhishek Sharma, Sanju Samson wicketkeeper, Tilak Verma, Hardik Pandya, Shivam Dubey, Akshar Patel, he is vice captain, Rinku Singh, Jasprit Bumrah, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Varun Chakravarti, Wasinder Sundar, and Ishan Kishan, the second wicketkeeper. So these are the 15 members. You want to repeat? So I am going to repeat the team once more. Surya Kumar Yadav, captain. Abhishek Sharma, Sanju Samson, wicketkeeper. Tilak Verma, Hardik Pandya, Shivam Dubey, Akshar Patel, vice captain. Rinku Singh, Jasprit Bumrah, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Varun Chakrabarti, Washington Sundar, and last Ishan Kishan. He is the another second wicketkeeper of the team. And I have with me the chairperson Ajit Agarkar as well as the captain. If you have any queries regarding the team composition, you are free to ask all your questions. Yes, sure. Yeah, mic is on. Hi. Any particular reason, like, you in the previous press conference? Do I ask? Yeah. Hi, Ajit. This is Shayan. In the previous few months, you had said about the continuity of the team leading after the World Cup. Now we see that Ishan Kishan breaking in and no Shubman Gill for that matter. If you could just take us through about the process and also the Akshar Patel being the vice captain. What's the whole process behind this? Shubman was the vice captain. He's not in the team, so there'll have to be somebody else as vice captain. And Akshar, before that, when Shubman was actually not playing the T20s and playing Test cricket, when a lot of the T20s used to clash, Akshar was the vice captain. So that's about the vice captain. About continuity, I mean, you're looking at combinations at the moment. If your keeper is going to bat at the top, our thought was to have another keeper just in case there's a problem. There's, at the moment, Jitesh was there. Again, hasn't done too much wrong. I mean, Shubman, we know what a quality player he is. Perhaps short of a little bit of runs at the moment. Unfortunate to missed out in the last World Cup as well because we went with different combinations. But it's the combinations more than anything else. Two keepers at the top. That's the way we want to try, and obviously the team management eventually will decide when they play what kind of combinations. Rinku's come, who gives that a little bit more depth, sort of middle to lower middle order. It's more the combinations. It's someone has to miss out when you pick 15, and unfortunately it's Gill at this point. Yeah, in case of Ishan Kishan, the 100 in the final and his domestic form, that is something, and it's also something that for a long while he was not there in the Indian team, and for various reasons. So, is this sort of a process to sort of bring him back and sort of integrate him with the team? Considering what happened in the past? No, I think he bats at the top in white ball cricket. He's been in good form. He's played before for India. He has a double 100 in one-day cricket. So I think it's... Look, I mean, he wasn't in the Indian team because there's a Rishabh Pant and a Dhruv Jurel ahead of him. Yes, the two pretty good players. So it's nothing to do with anything else. Like I said, he bats at the top. Sanju's batted at the top. That's where we feel that's the combination that we'll look at. Obviously, Abhishek Sharma's there. When you're looking at constructing a team, you're looking for the right kind of backups.
if in case in a tournament there's an injury or loss of form, and we felt he's the best candidate at this point. Has Shubman Gill been dropped on form? I mean, when he returned to the T20I fold before the Asia Cup, he was straight away included as the vice captain, although he was in that capacity in the Zimbabwe tour. But is it a case that he's struggling to crack the T20I code in terms of batting? Differ from mine, yeah. It's sometimes it's when you pick on players, it's a bit difficult to what someone else's opinion is to what ours is. We still think he's a quality player. You go through ups and downs with form, obviously, but it's more to do with the combination that we want to play or what the team management is comfortable playing. Whether it's Gigi and Surya, what their thoughts are, who's going to bat at the top. Abhishek obviously has done what he has done over the last year, maybe a little bit more. And we felt keeper at the top at this point gives us a lot more solidity everywhere else in the team to play different combinations. So, like I said, there are 15 that need to be picked. Someone has to miss out. It's him. It's not because he's not a good player. These are the combinations that the team management's looking for. And fortunately, in Indian cricket, we've got some options. In the last World Cup, we had seen that 4 spinners played for India, and this time too. Given the due factor, how do you see this decision? Because all 4 are not going to play in the same match. So does it give more flexibility and give us more chances to like them according to different oppositions? Last World Cup? We had 4 spinners here. The T21, and here we have seen 4 spinners too. So does it give more flexibility? Sir Patel, Jadeja and Kuldeep. So there were never 4 spinners. But to answer your question, I mean... does it give more flexibility and give us more choices? I mean, to... Didn't play a single game. Anyway, I understand what you're asking. Look, there are a couple of all-rounders in Akshar Patel and Washi, and maybe Surya will probably elaborate a bit more on that when the captain and coach know what combinations they want to play. But like you're saying, it gives us flexibility because there are 2 all-rounders, and then we're very fortunate to have 2 wrist spinners at this point. To have that in a T20 game is a huge plus. What combinations they play will depend on the venues that they play and the teams that they play, and that will be decided on the day. Could be a case where you play 6 spinners. Hopefully that's not the case, but look, the combinations they'll probably decide. But we've got a lot more options to play at different positions, which I'm sure the team management is what they're looking for always. Said that you can spell out something more on the squad, your thoughts, first thing, and World Cup at home, is it an advantage or a pressure? Responsibility for me, and it's a good challenge as well, and good motivation. You get to play in front of your home crowd. We did the same thing in 2023 ODI World Cup, and what we felt, I can't forget that. So it's going to be a good challenge when you're playing in front of your own home crowd. And talking about the squad, I think it looks balanced. We've actually filled in all the spots really well. Different, as he rightly said, different spinners for different positions, different combinations. We have actually 2-3 combinations already. As we see the squad, we already have 2-3 combinations ready. So we are quite happy with the squad right now. T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आप देख रहे थे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी मिथिलेश नौटियाल जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव। मिथिलेश, टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। हम तो जरूर चाहेंगे कि वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो हिंदुस्तान जीते, लेकिन ये जो टीम 11 है इसको लेकर पहले से ही कुछ आसार थे, पहले से ही अंदाजे आपके भी थे, ठीक वैसी ही है या कोई बदलाव नजर आया आपको? मिथिलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या?
कि इस वक्त बड़ी खबर यह है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। बदलाव क्या है? सबसे बड़ा बदलाव है इसमें शुभमन गिल शामिल नहीं है, जिन्हें फिलहाल रन मशीन कहा जाता है, वो इस टीम में शामिल नहीं है। और जो एक और बड़ा बदलाव है, ईशान किशन को टीम में वापस लाया गया है। ईशान किशन एक स्ट्राइकर हैं, बल्लेबाज हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, और इसके अलावा जो बाकी जो पुरानी टीम थी उसको एज इट इज ही रखा गया है। सूर्य कुमार यादव कप्तान है, अक्षर पटेल को उप कप्तानी दी गई है, जसप्रीत बुमराह टीम में है, अर्शदीप सिंह टीम में है, अक्षर पटेल टीम में है। तो ये गेंदबाजी और बल्लेबाजी का एक सधा हुआ ऑर्डर माना जा सकता है। शुरुआत की बात करते हैं, शुरुआती ऑर्डर क्या रहने वाला है टीम इंडिया का? तो जहां तक मेरा मानना है, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के हाथों में ओपनिंग की जिम्मेदारी होगी। इसके बाद जो बल्लेबाजी ऑर्डर होगा वो टीम इंडिया थिंक टैंक को तैयार करना होगा। लेकिन फिलहाल जो ओपनिंग की बात करें वो अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ही मुझे ओपनिंग ऑर्डर के लिए मुफीद लगते हैं। इसके अलावा गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह है, आपके पास अर्शदीप सिंह है, ठीक ठाक शुरुआत का जो पेस ऑर्डर है वो आपके पास है। स्पिनर्स में आपके पास कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव मिलकर स्पिनर की कमान संभाल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 15 फरवरी को भारत को पाकिस्तान के साथ मुकाबले के लिए तैयार रहना है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को पहले भी बता चुके हैं कि टीम ऑर्डर में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होगा। शुभमन गिल को लेकर थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ था। शुभमन गिल अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो उन्हें फिलहाल टीम से बाहर थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ। इंटरेस्टिंग तरीके से आप बता रहे हैं। देखिए 7 फरवरी से वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा, 8 मार्च जब फाइनल मुकाबला, और 15 वो तारीख जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। और ये तो ऐसे मैच है, ऐसे मुकाबले होते हैं ना, जिसमें सिर्फ भारत पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों की निगाह रहती है। बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। मेरे साथ में सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं, तौस रिजवी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। अभी जो टीम का ऐलान हुआ है, सेटिस्फैक्टरी है आपके लिए? रिजवी जी, आवाज आ रही है आपको? रिजवी जी, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। और जैसे मेरे सहयोगी मिथिलेश बता रहे थे, सूर्य कुमार पर भरोसा दिखाया यहाँ टीम इंडिया के कैप्टन के तौर पर, और उप कप्तान या फिर ऑलराउंडर्स जो सिलेक्शन है यहाँ पर, वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। और जैसे कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले का जिक्र किया, 15 फरवरी वो तारीख रहेगी जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा। कुछ लोग तो जो मैच में दिलचस्पी रखते हैं वो तो सभी मैचेस पर निगाहें रखते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान का मुकाबला जब होता है ना, तो जो मैच उतना पसंद भी नहीं करते वो भी फुर्सत से वक्त निकालकर इस तरह के मुकाबले देखते हैं। मिथिलेश मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आप अपनी बात पूरी कर लें। और साथ ही साथ जब मैं स्टूडियो के लिए आ रही थी, आप वॉशिंगटन सुंदर को लेकर कुछ बातें कह रहे थे। अभी आपकी भी तसल्ली हो गई होगी, वॉशिंगटन सुंदर का नाम भी है। जी हाँ, बड़ा ये भी अजीब सा सस्पेंस था वॉशिंगटन सुंदर के नाम को लेकर। ये माना जा रहा था, क्योंकि क्रिकेट एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि उनको टीम में शामिल होना चाहिए, काफ़ी लंबे वक्त से उन्हें जगह नहीं मिली है। तो वॉशिंगटन सुंदर को फिलहाल टीम से बाहर रखा गया है, उन्हें स्टैंड बाय के तौर पर रखा गया है। ये समझ लीजिए कि फाइनल 15 में भी उनका नाम नहीं है। अब हम देखेंगे टीम के सिलेक्शन पर और टीम के कॉम्बिनेशन पर, प्लेइंग 11 कौन होगा, कौन मैदान में आएगा, ये टीम इंडिया के थिंक टैंक को डिसाइड करना है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, जो ओपनिंग ऑर्डर होगा, ओपनिंग ऑर्डर के लिए नाम लगभग तय है। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, ये दो खिलाड़ी ओपनिंग ऑर्डर की कमान संभालेंगे। जो गेंदबाजी का ओपनिंग ऑर्डर होगा वो जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह संभालेंगे, और स्पिनर्स की जो कमान होगी वो अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के हाथों में होगी। इसके अलावा खास नजरें हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी पर भी रहेंगी। मिडिल ऑर्डर उनके हाथ में होगा। मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी को वो कैसे संभालते हैं ये उनको देखना होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव इस वक्त दो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं जो टीम इंडिया में शामिल किए गए हैं। और इन्हीं खिलाड़ियों के दम पर, इन्हीं दो खिलाड़ियों के दम पर पूरे जो नए खिलाड़ी हैं उनको हौसला मिलेगा और उम्मीदें जगेंगी। और खास तौर पर टीम इंडिया को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए 15 फरवरी के लिए। 15 फरवरी को भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला होगा, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी, क्योंकि क्रिकेट में हमेशा यही कहा जाता है भारत पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। तो ये जो टीमें होती हैं इनका मुकाबला देखने के लिए हर कोई उत्साहित रहता है। तो पाकिस्तान के लिए खास तौर पर टीम इंडिया को तैयार रहना होगा। पाकिस्तान के जो की प्लेयर हैं, मैं फिर से बता दूं, शाहीन शाह अफरीदी के लिए तैयार रहना होगा टीम इंडिया को। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, शाहीन शाह अफरीदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं, एक वो डबल दूसरा लेकर आ रहे हैं
ये डबल दूसरा क्या है, ये कौन सी गेंदबाजी है, अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है। शाहीन शाह अफरीदी का एक और बयान सामने आया है कि वो अब सिर्फ गेंदबाजी में नहीं बल्लेबाजी में भी परफेक्ट हो रहे हैं। तो वो एक की प्लेयर हैं पाकिस्तान की टीम के। यानी पाकिस्तान की टीम को अंडरएस्टिमेट नहीं करना है, अपनी तैयारी के साथ मैच में उतरना है। तौस रिजवी जी जुड़ गए मेरे साथ में, आपको आवाज आ रही है तौस जी? बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है, अभी मिथिलेश बाकी प्लेयर्स को लेकर जानकारी दे रहे थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव एक तरीके से देखा जाए तो पिछले 3 सीरीज से एक तरीके से फ्लॉप हैं, लेकिन फिर से उन पर ये बड़ी जिम्मेदारी। नहीं देखिए, डेफिनेटली फ्लॉप तो है, काफी समय से फ्लॉप है। 3 सीरीज का 1 साल से रन्स नहीं आ रहे उनके, और बहुत बड़ा कंसर्न है। और इसके बावजूद भी कप्तानी मिलना बड़ी बात है, कंटिन्यू करना, और ये प्लान रहा है। आप देखिए इसमें शॉकर्स रहे। आप शुभमन गिल को आप इतने समय से खिला रहे, उनको वाइस कप्तानी भी दे दिए, अब आखिर में आके जब वर्ल्ड कप क्लोज आ गया आपने उनको ड्रॉप कर दिया। ऑब्वियसली उन्होंने ये भी कहा कि रन नहीं आ रहे, वन ऑफ द रीजन की रन नहीं आ रहे, एक्सेप्ट किया फैक्ट, जबकि उनकी जगह बनते नहीं थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों को ओवरटेक करके उनको आपने जगह दिलाई, फिर ड्रॉप कर दिया। अब ईशान किशन को इतने सालों से आप इग्नोर कर लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप करने में, एक अच्छा सीजन गया, वो डिजर्व करते हैं, अच्छे प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, उनको रहना चाहिए था। मगर आप किस तरीके से चांस दे रहे हैं? आप सीरीज के वर्ल्ड कप के 1 महीने पहले से आप शुरुआत से कह रहे हैं कि हमारी वर्ल्ड कप टीम है, हमारी तैयारी है, मगर सडनली मेजर चेंजेस। हार्दिक पांड्या का वाइस कैप्टनसी, भाई इतने जबरदस्त फॉर्म में, आपने उनकी वाइस कैप्टनसी, कप्तानी का हक उनका था, उनसे छीन लिया 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले, फिर उनको वाइस कैप्टनसी देकर भी छीन लिया। फिर अब यहाँ पर अक्षर पटेल जो ऑब्वियसली वाइस कैप्टन थे पहले, अब दावेदार तो सबसे ज्यादा हार्दिक पांड्या थे वाइस कैप्टनसी, उनको वो भी नहीं दिया। तो सवाल काफी खड़े हैं वर्ल्ड कप के पहले। मगर अगर आप सही चलते अपनी चाल और सही चेस में जैसे बोर्ड बिठाया जाता है, तो आपका अभी तक ये सवाल नहीं उठते। टीम तो जबरदस्त है, ये मानूंगा मैं, अच्छी टीम है। सवाल तो पजल्स जो थे वो सॉल्व हुए हैं, मगर जब तक कि आपके न्यूजीलैंड के सामने परफॉर्मेंसेस डिलीवर नहीं होंगे, सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि आपने बड़े मेजर चेंजेस किए। और इस पे मुझे लगता है कि सिलेक्टर ने भी काफी अपने आप को वो किया है, गौर फिक्र करके बैठे हैं। नहीं तो देखिए आसानी से ये सब डिसीजन नहीं आते। इन डिसीजंस पर अभी तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अगर परफेक्ट तरीके से कॉम्बिनेशन काम करता है, टीम इंडिया पर जो भरोसा टीम इंडिया के फैंस का है वो काम कर जाता है, बेहतर परफॉर्मेंस रहती है, तो जाहिर सी बात है कई बार तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल टीम इंडिया कर जाती है, और लक का बड़ा साथ रहता है। तो देखते हैं लक कितना काम करता है। तो रिजवी जी साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मिथिलेश नौटियाल भी मेरे साथ में जुड़े थे। मिथिलेश आपका भी शुक्रिया ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लौट रहे हैं।